Dear students, we have studied about the kinds of resources on the basis of ownership. Now, we are going to study the resources on the basis of development. There are four types of resources on the basis of development. They are potential resource, developed resource, stock and reserves. First of all, we will study about the potential resource. The resource which is found in a region but have not been utilized due to the absence of appropriate technology, but in future it may be utilized. For example, we have seen that in western India like Gujarat and Rajasthan, there are enormous amount of solar and wind energy, but we have not appropriate technology presently, hence we are unable to utilize it. But in future, when the technology will be developed, then we will able to utilize it. पोटेंशियल रिसोर्स में आपने क्या देखा? ऐसे रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं और वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी सहायता से हम उसका पूर्णतः यूटिलाइज कर सकें। जैसे हमारे पश्चिमी भारत में आप देखेंगे काफ़ी ओपन एरिया है, वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी ये ह्यूज अमाउंट में है, उसका यूटिलाइज करके हम अपनी आवश्यकताओं की एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and which quality and quantity is well known and we are utilizing it fully. It is called developed resource. For example, iron ore, coal present in India. We are fully surveyed it and which quality of iron ore and coal is present in India, how much quantity it is present in India, and we are fully utilize it, hence it is called developed resource. ऐसे रिसोर्स जिसका कि हमें बढ़िया से उसका सर्वे कर लिया गया है और जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पूर्णतः मालूम है और हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि आयरन ओर है, कोल है और अन्य भी मिनरल्स हैं जिसका सर्वे किया गया है और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी पूर्णतः मालूम है और हम उसका पूर्णतः यूटिलाइज भी कर रहे हैं, इसलिए ये डेवलप्ड रिसोर्स हैं। थर्ड वन इज स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these resources are called stock. The resources which are present in the environment and which can satisfy our needs, but there is lack of appropriate technology due to which we are unable to utilize it. It is called stock. For example,
we know that water is made up of two gases, oxygen and hydrogen. By breaking down of water, we can separate hydrogen and oxygen, and by breaking down of hydrogen, we can achieve a large quantity of energy. But presently, we have not appropriate technology to assess it, hence it is called stock. But in future, when the technology will develop, then we may be able to utilize it. आपने देखा स्टॉक में ऐसे रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं और जिसमें हमारी आवश्यकता करने की जो है पूर्ण क्षमता है, बट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसका प्रेजेंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं कि वाटर जो बना है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अगर वाटर को तोड़ा जाए तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होंगे और हाइड्रोजन को तोड़कर हम ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज रिजर्व। रिजर्व्स आर ऑल्सो द सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व भी एक स्टॉक का सबसेट है which can put into use with the help of existing technology know-how, but their use has not been started. ऐसे रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट हैं, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं और हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम इस रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, और हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी भी है, हम उसका यूटिलाइज कर भी रहे हैं। बट इतना डेवलप नहीं है टेक्नोलॉजी कि हम पूर्णतः उसका उपयोग कर सकें। बट इन फ्यूचर व्हेन वी हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, देन वी विल एबल टू यूटिलाइज इट फुली। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट there are enormous amount of water resources in ईस्टर्न इंडिया। हमारे ईस्टर्न इंडिया में वाटर रिसोर्स का अपार भंडार है, और बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन यूटिलाइज इट टू मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एंड बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी we can fulfill our needs of the electricity. But in present day we are not fully utilize it due to lack of appropriate technology, but we know how to produce hydroelectricity. You know that in India there are many hydro plants and we are achieving hydroelectricity, but we are unable to use it fully. हमारे पास जो जल से विद्युत उत्पन्न करने के साधन पूर्वी भारत में अपार हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम जानते हैं कि कैसे हाइड्रो पावर का निर्माण किया जाता है। आप जानते हैं कि भारत में अनेक जगहों पर हाइड्रो पावर का निर्माण किया जा रहा है, बट प्रेजेंटली हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम फुली इसका यूटिलाइज कर सकें। बट इन फ्यूचर व्हेन द टेक्नोलॉजी विल फुली डेवलप, देन वी विल एबल टू अचीव द हाइडल पावर फुली। जब हमारे पास पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम एबल हो जाएंगे कि पूर्वी भारत में जो जल संसाधन की असीमित भंडार है उसका हम पूर्णतः उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से यह रिजर्व्स भी आपने देखा कि एक
स्टॉक का ही सबसेट है। स्टॉक का भी हम पूरी तरह से उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास पूरी तरह से टेक्नोलॉजी नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि स्टॉक में हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, बट रिजल्ट्स में टेक्नोलॉजी है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बट इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका फुली यूटिलाइज कर सकें। ओके, थैंक्स। अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो क्लास ए के स्टूडेंट्स थे वे भी अब इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं। हैंस you should try to understand the lecture English to English because it will be helpful to you। हिंदी में सिर्फ पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको अब अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना होगा। ओके, गुड मॉर्निंग।